I think we can start with the session now. More people will be joining us in some time. So, yeah, we can start with it. Okay. Great. So, welcome everyone to the 69th session of the FIFO Talks. And I'm really happy to see all of them. And welcome Mayur for the session, speaker of the session. And I hope I am perfectly audible to everyone. Yes, Okay, great. Hi Mayur, how are you? I'm doing good, Ashita. How are you? I'm doing great. So I'm really happy to see you here, like having a session with you. I we are connected on LinkedIn for quite a while now, and I'm happy with this collaboration finally happening. Great, great, and good to be on the show. I've been able to see some of the posts. I didn't have the privilege to join you in any of the session, but I think uh, you're doing fantastic work, and I've seen some of the people who have already been with you, like Rohit and all these guys, and we find out that this session is actually adding a lot of value to people. So it's good to be here. Great, great. I'm happy to hear that as well. So I guess we can start with a brief introduction of yours, and then we can move forward with the discussion. Great, great. So, if I have to talk about myself, I started. So basically, I was born and brought up in Nagpur in a middle class family, and my dad was a timber merchant, and my mother was a school teacher. So my upbringing was very you can say middle class and just like the normal Indian family, to be honest. Though we are Gujarati, so my dad had a business, so I still possess a lot of qualities from him, from an entrepreneur skills. When it comes to my mom, she also gave me a lot of things which I still remember. I still go ahead and practice in my daily life. So it was very normal. And me and my brother were two kids of our parent, and we had we were had amazing time. And I started working in a professional life in January 2007, and I started with one of the US based software company in Nagpur. So they had their offshore development uh, or kind of offshore development team in Nagpur. So I spent my like 7 months with them. Then I moved to IBM when I went ahead and spent a couple of years of my life and learned a lot of professionalism, how big corporation works, and a lot of things, because that's an IBM itself is an institution when it comes to professionalism and all these things. I moved back to Nagpur, and I was working with IBM in Pune, so I moved back to Nagpur, and then I was trying to find out good organization of that stature in Nagpur. But to be honest, it was not there, and it is still not there. So this is how freelancing has happened to me. So it was never a planned thing. What has happened is I had one thing in mind, because I was doing some of the research in how digital marketing is actually shaping up in countries like US and UK. So I was in back in the mind, I had that okay, SEO is one skill which is coming up in this space, and I should go ahead and acquire that. So it started working on that. I think if I look back to now 14 years in the career, worked with decent number of clients, went to a lot of trainings. I trained a lot of students, entrepreneurs. So it's been good, right? And past 1 year has been a roller coaster, or you can say we're going up, since the demand has also increased of the digital. We see that huge surge in the market right now when it comes to digital. I started digital when nobody knew digital in India back in 2010. When I look back right now, a kind of opportunities are there for new guys, for us. It's tremendous. The potentials are tremendous right now. So that's basically in a nutshell for me. Great, great. Thank you so much for the introduction, and I hope everyone now has an idea from whom they will be like learning today. So yeah, we can start with the discussion on first on the topic. We can discuss a bit, and then we can go through the slides and everything that you have made. Right. Okay. So, starting with the topic, so today's topic is how to navigate yourself successfully as a freelancer.
So in the first, like before freelancing actually comes to us, it's about freelancing mindset. So Yeah. what's your take on having a freelancing mindset, and what it is actually about? That's a very, very interesting question, Harshita, because what happened is, let me put this way. So when you say freelancing mindset, this mindset uh, stretches you in every possible manner and every possible direction. So when you say that freelancing mindset, the first thing first is you have to stretch yourself to a lot of extremes. So let's say you are your boss, you are your employee, you are the one who takes care of the service as well. You also takes care of the operations. You also takes care of admin. You also takes care of HR. Also takes care of financing, right? So when I say entrepreneurial mindset is basically one thing that you need to be very sure that no matter what comes, you need to come out of any damn problem by yourself. And yes, you can definitely ask for help from experts. So if I have to talk about myself, see how I navigated. It's not that I have never made a mistake. In fact, I make hell lot of mistakes. And then I started learning from those mistakes. So I never repeated one mistakes again. So when I say mindset of a freelancer is something that okay, come what may, I am going to get whatever I want from this. Maybe it could be from a project, it could be from a personal thing. So this mindset actually is just not about your professional life. This mindset is actually a 360 degree, and this mind is always active. So let's say I'll give you one example. Let's say, for example, if my computer breaks down, right? I can't go ahead and tell that ये मेरा काम नहीं है. For example, if I am the one who is working on this, this is my work. If let's say even in the freelancing, what happened is I was working in a big team. So I was working with a US based client, and he was having team across the globe. So he had some freelancers in India, some freelancers in Bangladesh, some freelancers in Philippines, some freelancers in Australia as well. And then how I actually excelled throughout is that I was working as a content writer to begin with on that project. And one fine day, I asked my client that it's been 6 months, I have been writing content for you. And whether it is actually making sense to you, or are you actually benefiting from my content? Then he said that, Mayur, it is working absolutely fine. We are getting good organic traffic. So back in 2010, organic traffic was a Hebrew for me. I said, what does that mean? And then he said, then he introduced me to the world of analytics and SEO. So again, the mindset come is it's my curiosity. If I did not ask him that question that day, probably I will not be talking to you today from a digital marketing standpoint or a freelancing standpoint, because from that one question has actually changed my entire career. Now I all of a sudden he introduced me to a world of SEO which is very huge, which is way beyond my expectation that okay SEO भी ऐसा कोई चीज है. So entrepreneurial mindset is basically you keep, or you can say freelancing mindset is basically you keep exploring yourself. You keep challenging yourself that okay, one thing is there. Can I move to the what is next? You have to keep asking yourself. And the moment you ask yourself, you become that okay, it's a curiosity that is driving you. And another point which I like to make is never afraid to make any bold decisions. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? Fail हो जाओगे. At the end of the day, if you don't make the mistake, if you just be in the soft zone, or if you be in your comfort zone, नहीं होगा. So push yourself. That's again a mindset, and ready to take challenges, ready to take risk. I have taken so many risks. ऐसा नहीं है कि मैंने risk लिए और मैं हमेशा successful हुआ. I have made tremendous losses in my business as well. But that has never stopped me. That has never stopped me. So one, as a freelancing mindset, or an entrepreneurial mindset, or a gigpreneur mindset, I call it as a gigpreneur.
So Right. मैं उसको इस तरीके से लूँ तो it's like summarize it in A. Always have that curiosity in the mind. Never be complacent. Take risk, whatever it is. Sometimes लोग आपको बोलते हैं यानी जब when I started freelancing back in 2010, ऐसा कुछ था ही नहीं यानी nobody knew कि freelancing कोई चीज होती है 2010 अगर आप There was less competition at कुछ that था ही point. नहीं यानी फ्रीलांसिंग होती थी सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकल काम जो डेवलपर्स थे या कोडर्स थे वो अपवर्क के थ्रू या ओडेस्क के थ्रू कुछ काम लेते थे. So that was the time when it used to happen like that. So when I started working from my bedroom, I started working from my bedroom to be honest initially. So मैंने वहां से काम शुरू किया ना तो रिलेटिव्स आजू बाजू वाले आस पड़ोस के लोग they used to see कि यार ये आदमी हमेशा घर पे ही रहता है. Is he working or not? So you also people will start asking, अच्छा आप घर पे ही रहते हो हमेशा कुछ करते नहीं हो क्या? I've got ऐसे भी सवाल मैंने सुने कि आप घर पे ही रहते हो कुछ करते नहीं हो क्या? So I come that इस तरीके के स्टिग्मास भी आते हैं but then again you have to keep working towards. There is no alternative. There is no alternative for even you need to move. आपको पूरा किलोमीटर एक साथ नहीं जाना है. You have to move inch by inch. So that's basically for me. And one thing I like to add is more the industry. आपको देना है कभी कभी आंख भी बंद कर देनी है लोगों की बातें सुननी नहीं है. आपको पता है आप क्या कर रहे हो. So that basically gives me a lot of motivation कि नहीं सुनना है मुझे किसी की. So that's basically an entrepreneurial mindset to be. Like push yourself. दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है. Right. And I just want to add a point here that pushing yourself, and it should be as early as possible. Like people take time to take decisions, and by the time that like golden period, we can say that goes off. Like many people here are in their 20s or 30s. So I guess that will be the best time for them to take risk and to make decisions and to learn from them. So I guess that would be a point here as well. तो हर्षिता इसमें एक चीज है बहुत बार क्या होता है कि ये भी एक चीज है कि हम कहते हैं कि फेल अर्ली फेल फास्ट. एक्चुअली दैट्स नॉट द राइट वे टू टेल. देखो फेल अर्ली फेल फास्ट ऐसा कोई चीज होती ही नहीं. बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप कम लाइफ अगर आप अर्ली फेल हो गए तो बाद में सक्सेस मिलेगी. ऐसा भी नहीं है. गारंटी सक्सेस कहीं नहीं है. Right. ऐसा The तो नहीं. only thing that I am personally follow is that it is good to don't know something. For example, अगर मुझे नहीं पता है कि let's say मैं 6 महीने क्या करने वाला हूँ या for example, तो it is good कि वो एक certain period में है. So let's say for example अगर मैं career decision नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे 3 महीने 4 महीने अगर मैं decision नहीं ले पा रहा हूँ तो that is okay. कोई जल्दी नहीं है. But अगर वो decision अगर आप 2 साल तक नहीं ले पा रहे हो then there is a worry. बिकॉज वो पीरियड जितना लंबा होता जाएगा ना एक्चुअली लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे. बहुत बार क्या होता है कि एंड आई हैव सीन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस. यार बहुत बार ऐसा होता है ना घर पे भी आपको डाउट से देखा जाता है कि यार ये करेगा कि नहीं करेगा. एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट. यानी उनका इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है. दे वांट टू अवेयर यू कि यार कुछ करना पड़ेगा. बट दैट सिचुएशन दैट मोमेंट दैट इमोशन इज वेरी पेनफुल. सो आपको करना क्या है. आपको करना ये है कि व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एंश्योर कि यू फाइंड आउट योर वेज इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. उस टाइम को प्रोलॉन्ग मत करो. इट्स ओके 6 महीने नहीं पता है कोई बात नहीं. मैंने भी अपना ग्रेजुएशन फिनिश किया. I did my Oracle certification. I did my Microsoft certification. 6 महीने में मैंने 6 महीने मेरे पास कोई जॉब नहीं था. But then I was exploring कि मैं क्या कर सकता हूँ. But अगर had it been 2 years, I think I would have been in very difficult times. So that's one thing I like to add. Right. So I agree with your point. And with this, if anyone has any question, they can keep putting up in the chat. So we can move forward with the next question. After having the right freelancing mindset, I guess the next important point is finding your niche, like in which thing you want to be a freelancer, and in that also niching down and having some specific things to work on. So how would Yes. you explain that point?
That's very important. देखो शुरुआत में किसी को निश पता नहीं होती. Let's be very honest. We are not कि हाँ पहले दिन से मुझे निश पता है. I don't want to boast that as well. मुझे भी नहीं पता थी, किसी को नहीं पता होती. Let's be honest. But कुछ fundamentals है. There are certain fundamentals that we need to follow. So A is देखो क्या होता है, I don't know, बहुत लोगों को पता होगा, but there is a state of mind. There is a state of mind कि अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आपको लगता है कि यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड. कुछ आप करते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार बोरिंग है बट करना है, फॉर एग्जांपल बिकॉज इट्स बीन टोल्ड टू यू. So there are certain barometers which I follow, which defines ki whether this is for me or not. So तीन चीजें हैं जो आपने सुनी होगी, लेकिन मैं उसको अलग तरीके से डिफाइन करता हूँ कि पहला चीज होता है कि व्हाट इज माय पैशन. सेकेंड जो चीज होती है वो होती है कि व्हाट इज माय यू कैन से टैलेंट. सो मेरा पैशन क्या है, मेरा टैलेंट क्या है, एंड देन वेयर इज द मार्केट. इन तीन चीजों का जब आप इंटरसेक्शन करते हो ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ कुछ तो निकल के आ रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ वेरी अर्ली डेज ऑफ माई लाइफ I was very much a person who would like to solve lot of problems. लोगों की business problem हो या personal problem हो या कोई भी problem हो, मुझे वो solve करने में मजा आता था, because at the end of the day I see a smile on people's face. I find out कि नहीं यार it give me a sense of doing something. So then I realized कि हाँ problem solving is something which I am very good at. मैंने बहुत बहुत किया है. Then I realized कि मेरा जो inclination था from a very early days, it was towards technology. So when I started working, as I told you, मैंने Oracle certification किया. I'm a DBA. I did my ethical hacking certificate. I did my Microsoft .NET development certificate. So my inclination was always towards technology. My dad had a traditional business of timber, but मुझे वो कभी रास नहीं आया, मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया उसने. तो आई थॉट कि हाँ टेक्नोलॉजी तो से के साथ कुछ करना है, टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व करना है. देन मार्केट. अब मार्केट की शुरुआत में किसी को समझ नहीं होती. मैंने अपने अर्ली डेज में कंप्यूटर्स बेचे थे, तो उस समय जमाना होता था असेंबल्ड कंप्यूटर्स का. People used to sell assemble laptops के भी जमाने नहीं थे ना. 2000 I'm talking about 2006-7 इसकी बात करूं जब मैं कॉलेज. In fact, when I was in first year of college, I sold my first computer. उस समय मैं पर कंप्यूटर like 2500 रुपीज ऐसा कुछ ऑन करता था. So that was in 2004. So टेक्नोलॉजी से हमेशा लगाव था, और वहां से फिर लगा कि नहीं करते, तो पूरा कॉलेज का फीस अपना कंप्यूटर बेच बेच के निकाला. सो इतना तो पता था कि हाँ टेक्नोलॉजी में कुछ करना है. बट अगेन बाकी लोगों की तरह भी प्रॉब्लम फेस किया कि यार अब ग्रेजुएशन हो गया है, अभी जॉब करना है, कुछ सर्टिफिकेशन लेने हैं. सो स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दैट. एंड देन आई रियलाइज्ड आफ्टर अ पॉइंट कि जॉब में मजा नहीं है. बिकॉज जॉब में इसलिए मजा नहीं है क्योंकि आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो, एक ही चीज बार बार कर रहे हो, एक ही चीज बार बार कर रहे हो. कि नहीं यार, और ये मेरा नेचर है कि आई कैन नॉट डू सेम थिंग अगेन एंड अगेन. आई नीड टू फाइंड इट समथिंग डिफरेंट. सो फ्रॉम देयर फिर जब आया समझ में आया कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी फील्ड है. उस समय रिसर्च करना शुरू किया था कि यार ऐसी कौन सी चीज है. अब कोडिंग मुझे सीखा था, लेकिन कोडिंग में मजा नहीं था, या कोडिंग वाज समथिंग विच आई फील कि नहीं मेरे लिए नहीं बनाई है. एथिकल हैकिंग किया, उसमें भी आई फाइंड आउट कि नहीं. सो मैंने आई हैड माय शेयर ऑफ फेलियर्स. दैट्स नॉट अ चैलेंज, बिकॉज वो होना है, सबके साथ होना है, इट्स अ प्रैक्टिस. बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ. आई गॉट माई फर्स्ट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट थ्रू पिगी बैकिंग. मैं आपको बताऊंगा पिगी बैक मैंने कैसे किया था. बट आई गॉट माई फर्स्ट कंटेंट राइटिंग असाइनमेंट फ्रॉम अ यूएस बेस्ड क्लाइंट. एंड दैट इज हैपेंड कि हाँ मुझे I work with IBM, so मेरा communication I used to interact with lot of US clients IBM में. तो मुझे पता था कि I can do that, I can write it. फिर वहां से चीजें शुरू की, and then what happened is कि करते गए फिर समझ में आया कि अपना स्ट्रेंथ कंटेंट मार्केटिंग है, तो उसमें आया.
और ये जो निश है ना, ये एवर इवॉल्विंग है. I'll tell you one more thing that has happened recently. After spending 10 years in my career, recently when I again revisited the entire sentence or entire same question कि what is the niche that I should target upon. Niche एक दिन आपने एक बार बना ली और फिर उसी पे जिंदगी भर काम करते रहोगे, ऐसा भी नहीं है. I've rediscovered my niche that I am very good in B2B marketing. So back in 2020 जब ये पैंडेमिक आया, बहुत टाइम मिला घर पे बैठने का, समझने का, सिचुएशन समझने का, अपने आप को समझने का, and then I realized कि B2B is something that I can do. In past 1.5 year, almost 1 year now, I have concentrated on B2B, especially in IT and SaaS players. और जब मैं मार्केट कहता हूँ ना, तो अब आपकी रिसर्च काम आती है, बिकॉज बैक इन 2020 February onwards, HubSpot has published one research जहाँ पे ये बहुत प्रोडोमिनेंटली बताया गया कि हाउ इंडियाज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज, SaaS कंपनी विल बी डोमिनेटिंग वर्ल्ड इन नेक्स्ट 5 years. And there I realized कि it has a huge potential and nobody is tapping onto that. If you do a Google search and say कि B2B marketing companies, you will find out handful of companies in India. आप उंगली पे गिन सकते हो. And from that I realized कि अगर इस सेक्टर में अगर मैं अपना काम शुरू करूँ जो मुझे this is something of my interest, I'm good at B2B marketing, I understand negotiations, I understand how B2B, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. We started working in that, and in just 6 months, 7 months of time, we find out that right now we are working with more than 7 IT companies and 2 SaaS companies. So that decision was not just on my passion and skills, that decision is also on where the market is going on future. तो आज अगर इंस्टाग्राम रील बहुत चल रहा है तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस नहीं करूंगा, मैं आगे के 2 साल का भी सोचूंगा, आगे के 5 साल का भी सोचूंगा, बिकॉज यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन ट्रेंड एट एवरी डिफरेंट लेवल. आज 6 महीने के ट्रेंड पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, आने वाले 5 साल के ट्रेंड पे भी कॉन्सेंट्रेट करो. So that's how I और ये रिफाइन होते रहेगा. Your niche get refined every time that you rework on that, and you need to do that. हर साल भर में आपको एक ना एक बार इस पे रिविजिट करना पड़ेगा, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा आपके लिए. Right. Okay, right. So I guess that's pretty much clear answer for the niching down, and you have said it very right that we should focus on passion, talent, and then market, current market and the future market, to niche down and to particularly find which thing we can work upon. Right. Okay. So next topic that we have chosen for the session is about skill gap analysis. So I'm like, what? How would you start with this? Because I'm pretty unclear about this as well. Yes. So ये है ना अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. होता क्या है कि बहुत बार when we think of skills, the moment you think of skills ना, तो आपके दिमाग में या बहुत लोगों के दिमाग में, मैंने देखा भी है, मेरे भी दिमाग में आता था कि you think of more, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिंक्डइन मार्केटिंग करनी है तो कौन सी स्किल्स चाहिए फॉर एग्जांपल, राइट? तो you'll find out कि हाँ मुझे कंटेंट राइटिंग आना चाहिए, मुझे एल्गोरिथम समझ में आना चाहिए, आई शुड बी डूइंग दिस, आई शुड बी डूइंग दैट. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है एक फ्रीलांसर के लाइफ में, वो उसको बहुत सारे स्किल्स चाहिए, बिकॉज उसको मार्केटिंग भी करनी है, उसको सेल्स भी करना है, उसको एचआर भी करना है. बिकॉज एचआर से मेरा मतलब ये है कि कभी कभी ऐसी चीजें भी हो जाती है जो यू कैन गो अहेड एंड डोंट डू बाय योरसेल्फ, और अगर आप खुद ही अकेले करोगे तो आप बर्न आउट हो जाओगे. तो यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट राइट काइंड ऑफ कोलैबोरेटर्स. सो उसको एचआर भी करना पड़ेगा, उसको फाइनेंस भी समझना चाहिए. सो ये जो स्किल गैप एनालिसिस है ना, ये स्किल गैप एनालिसिस एक पैटर्न के थ्रू होता है. सो बेसिकली हाउ आई डू इट इज कि आई ट्राई एंड फाइंड आउट अ चार्ट विच सेज दैट मेरे जो अभी करंट निश है और मेरी जो करंट डिमांड है उसमें गुड स्किल कौन सी है, यानी एसेंशियल स्किल्स कौन सी है, गुड टू हैव क्या है, और maybe I can learn something new thing, right? So
पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्किल गैप एनालिसिस में आपको फेजेस आएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मैं क्लाइंट को मार्केटिंग कैसे करूंगा, क्या वो स्किल मेरे पास है, सेल्स अगर मुझे करना है तो क्या सेल्स की स्किल मेरे पास है। सेल्स के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, देयर कुड बी negotiation skills है, यू कैन से बांटना विच इज अगेन अ टर्म इन सेल्स कि भाई आप अपने आप को पोजीशन कैसे करते हो मार्केट में। इनफैक्ट नेगोशिएशन के अंदर भी परतें होती है कि फॉर एग्जांपल आई नॉर्मली आस्क, ये पॉइंट है कि मैं नेगोशिएशंस कैसे करता हूँ। आई नॉर्मली आस्क एनी ऑफ माय प्रोस्पेक्ट और टू बी क्लाइंट कि am I your best choice? If client says कि नहीं, we are also talking to 2-3 guys or that seems to be superior than you or something like that, then I'd say कि negotiation या price की मैं बात ही नहीं करता, because any which ways nobody wants to buy a second best option. I'm sure मैं भी नहीं खरीदना चाहूंगा, आप भी नहीं खरीदना चाहोगे। So इसके अंदर अगर मेरे पास क्लाइंट ये बोलता है कि यू आर नॉट माय फर्स्ट चॉइस, तो फिर डिस्कशन ही खत्म हो जाता है। देन वी विल से कि ठीक है, आई एम नॉट द बेस्ट चॉइस, तो फिर प्राइस निगोशिएशन ये वो सब बात की बात है, फिर आप करना ही नहीं है वो सब चीजें। सो यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी फाइंड आउट कि आपके पास सेल्स है, आपके पास लीगल है, आपके पास HR है, वो चीजें आपको और काम आएगी आपकी काम से। जैसे अगर इफ समवन इज अ ग्राफिक्स डिजाइनर, डेफिनेटली उसको नए टूल्स सीखने हैं, उसको नई स्किल्स सीखनी है, UI UX सीखना है, मार्केट में बहुत सारी दूसरी चीजें सॉफ्टवेयर आते रहते हैं वो सीखना है। बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू हैव अदर स्किल्स, और ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि एज पूरे फंक्शन को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज अ फ्रीलांसर आप सब कुछ हो, एंड देन इट इज योर अंडरस्टैंडिंग की है। तो ये स्किल गैप एनालिसिस में आप एक फ्रेमवर्क फॉलो कर सकते हो कि इस काम को करने के लिए मस्ट हैव्स क्या है, कौन सी चीजें जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, कौन सी चीजें मैं फ्यूचर में सीख के उस पर और मास्टरी कर सकता, बिकॉज वो मेरे रोज की नहीं है चीजें। कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो आपके पास हमेशा होने चाहिए, जैसे कि प्रपोजल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके सर्विस अग्रीमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, वो भी एक स्किल है, वो भी लीगल टर्म्स की एक स्किल है। डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द स्किल दैट यू शुड हैव। कोई भी फ्रीलांसर हो, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन की स्किल अगर उसके पास नहीं है तो हमेशा उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहेगी, बिकॉज क्लाइंट जब कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता है ना तो उसका मेच्योरिटी लेवल भी समझ जाता है कि ये कितना मेच्योर बनता है। बिकॉज अगर डॉक्यूमेंट में गलतियां हैं या डॉक्यूमेंट चीजें सही, तो फिर लेकिन हाँ ये नया कोई है जो शायद सीखने की कोशिश कर रहा है। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझते कि आफ्टर सेल्स सर्विस, इनफैक्ट आज ही मैं लिंक्डइन पे एक पोस्ट पढ़ रहा था एंड पीपल वर डिस्कसिंग कि सेल्स के बाद रिलेशनशिप तो खत्म हो जाता है। इनफैक्ट सेल्स के बाद तो रिलेशनशिप शुरू होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज अगर आप सही तरीके से सेल्स कर रहे हो और अब आप अगर सही सर्विस दे के रिलेशनशिप मेंटेन करोगे ना, आई कैन बेट, ये मैंने स्ट्रेटेजी यूज भी की है, दैट पर्सन विल गिव यू रेफरल्स, और रेफरल इज द बेस्ट वे, बिकॉज आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमेशा नीचे रहेगा इफ यू गेट अ राइट रेफरल। अदरवाइज रोज मार्केट करना, रोज सेल्स करना, योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गोज हाई, और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगों को समझ, इनफैक्ट फ्रीलांसर्स को ये समझ में ही नहीं आएगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। कि अगर मैं एक क्लाइंट को फ्रॉम द डे वन पिच करने से लेकर ऑनबोर्डिंग करने तक अगर मेरा 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता लग गया, देन मेरा कॉस्ट क्या है, बिकॉज नो वन एक्चुअली कैलकुलेट्स टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। सो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ये काम क्लाइंट से करने का 20,000 रुपए ले रहा हूँ और वो 2 दिन में खत्म करना हो, दैट मीन्स मेरा एक दिन का कॉस्ट है 10,000 रुपीज, और मैं उसको एक दिन नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि उसका 8 घंटे में उसने 10,000 कमाया। सो दैट मीन्स 1 hour is equal to let's say 1,200 rupees. So if you're spending that 1,200 rupees on 1 hour, अगर आपको 20 घंटे क्लाइंट को लगे, इमेजिन आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना ऊपर है। 20,000 25,000 रुपए अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जाता है तो देन यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी। 25,000 रुपए कॉस्ट फॉर एक्विजिशन बहुत हाई होता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स है जो आपको सीखनी चाहिए, एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पहले दिन नहीं आएगा,
हाँ, बट ये अगेन स्किल है, ये स्किल है जो आपको अगेन द क्यूरियोसिटी विल ड्राइव यू. सो these are all lot of skills. In fact, कस्टमर सर्विस एक ऐसी स्किल है जो लोग नहीं समझते. यानी फॉर एग्जांपल क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर कोई कस्टमर आपको कहता है कि योर वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, वो एक्चुअली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है. दैट क्रिटिसिज्म एक्चुअली विल हेल्प यू टू मेक योर सर्विस बेटर. बट ये भी एक स्किल है टू हैव द फीडबैक, निगेटिव कितना भी निगेटिव फीडबैक हो उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करना इज अगेन अ स्किल. नोबडी नो. इनफैक्ट लोग उसको पर्सनली ले लेते हैं, लोग रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं. वो भी एक स्किल है. इसीलिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें, चाहे फिर वो आपके सर्विस रिलेटेड हो या चाहे फिर वो आपके सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड हो या फिर आपके माइंडसेट रिलेटेड हो. दीज आर ऑल स्किल्स व्हिच यू नीड टू डेवलप. तो ये बहुत छोटी छोटी स्किल्स है बट ये आनी चाहिए. निगोशिएशन स्किल्स है, एचआर, एडमिन, फिनेंस सबसे ज्यादा. आज इनफैक्ट आई रन अ पोल दैट अदर डे कि आप क्यों नहीं कर पाते हो फ्रीलांसिंग को एज अ फुल टाइम. तो 50% ऑफ द पीपल सेड कि उन्हें क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती. दैट मीन्स दे आर नॉट डूइंग मार्केटिंग वेल. I think 17% of the people also said कि financial instability. अब वो financial instability कहाँ से आती है? Because आप ideal customer नहीं ढूंढ पा रहे हो, उनको सर्विस नहीं कर पा रहे हो, तो कस्टमर भी नहीं आया, इसलिए financial instability आ गई. लेकिन at the same time financial instability को रोका जा सकता है. There are certain platforms available जहाँ पे आप मंथली इन्वेस्ट करो और वो लोग मंथली आपको पैसा वापस करते हैं in next 10 months or 15 months. There is a platform called Grip, which is again a crowdfunding platform. आप 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो. बट अगेन यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट भी चाहिए आपको. सो ये बहुत छोटी छोटी स्किल्स है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग डेवलप करेंगे बट तेजी से होनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई ट्रेन लॉट ऑफ पीपल कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट जस्ट योर आपका काम से रिलेटेड स्किल्स नहीं है. ये गिगप्रेन्योरशिप या फ्रीलांसिंग is basically a huge thing. यानी आप सब कुछ हो, आप अपने अंदर सब कुछ लेके चल रहे हो rather than just a worker. Right. So we have some questions in the chat box. Yes, I can see. Yatanshu asked that what is gigpreneur? What is gigpreneur? Okay, so आपने entrepreneur सुना होगा. So gig economy, there is a word. So gig economy exists. Gig economy का मतलब, और gig economy 2000 यूएस में 2012-13 से एग्जिस्ट कर रही है. आई रिमेम्बर फाइवर में मैंने सबसे पहला जो अपना अकाउंट बनाया था वो 2012 में बनाया था. एंड आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन कंटेंट राइटिंग. सो गिगप्रेन्योरशिप, गिग का मतलब है कि वो छोटा काम. गिग इकोनॉमी, गिगप्रेन्योरशिप इज गिगप्रेन्योर. मैं एंटरप्रेन्योर हूं, खुद ही एंटरप्रेन्योर हूं, लेकिन मैं छोटे छोटे काम करता हूं. आई वर्क अलोन. सो दैट्स बेसिकली अ गिगप्रेन्योर. अगर आप देखोगे दिस टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय एंटरप्रेन्योर वेबसाइट, entrepreneur.com पे जाओगे तो उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया है कि दैट इज गिगप्रेन्योरशिप. देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Do you also solve the legal matters by your own, apart from doing HR, finance and marketing? So क्या होता है ना, ये भी अपने आप में एक स्किल है और वो स्किल है जिसको मैं कहता हूँ कोलैबोरेशंस. एनी विच वेज मैं लीगल टर्म जानता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है लीगल, ना एचआर मेरा बैकग्राउंड है. सो आई कोलैबोरेट विद पीपल एंड दिस इज द स्किल अगेन यू नीड टू इनकॉर्पोरेट एज अ फ्रीलांसर कि जहां आपको पता है आपकी समझ नहीं है, आपकी स्किल्स में, या आप अननेसेसरी वहां डाइवर्ट अटेंशन करोगे तो आपको दूसरी जगह नुकसान होगा. यू कोलैबोरेट विद पीपल. आई एम माय लीगल गाइस. ऐसा नहीं है कि एचआर, जब मैंने कहा तो सारा एचआर मैं ही करता हूँ. मैं इंटरव्यू लेता हूँ लेकिन सोर्सिंग करना, ये सब करना, आई हैव समवन हु टेक्स केयर ऑफ दिस. ही इज आल्सो अ फ्रीलांसर. ही इज अ फ्रीलांस एचआर गाय. सो द गुड पार्ट इज इन दिस कोलैबोरेशन करना is again a skill that needs to be incorporated. So I'm not a legal guy. I collaborate with people. Next question is, what is your advice on inbound marketing? What is the advice on inbound marketing? It's a very broad question to be have, but inbound marketing may it's good to have, or it should, everybody should have
a mechanism in place for inbound marketing. अभी मैं आपको चीज समझाता हूँ कि inbound marketing है ना, थोड़ा fancy word लगता है लोगों को, क्योंकि वो I think the inbound marketing was first used in some years, I don't remember, फिर उसको HubSpot ने बहुत popularize किया. बट इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या है? इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब है कि कोई चीज आपके पास चल के आ रही है. वो कैसे होती है? मैंने बहुत इस तरीके की चीजें की और मैंने बहुत ट्रेडिशनल तरीके से भी बिजनेस, बीइंग एन डिजिटल मार्केटिंग गाय, मैंने ट्रेडिशनल तरीके से भी बिजनेस लाया. यानी अब जैसे अगर आप ये फोटो देख रहे हो मेरा, आई वॉज स्पीकिंग इन BNI. BNI स्टैंड्स फॉर बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल. इट इज अ रेफरल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में काफी बड़ी, आप उसकी वेबसाइट देख सकते हो. I joined this organization because सिटी के टॉप 200 लोग वहां थे. तो अब उन टॉप 200 लोगों के साथ मैं उठ बैठ रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ. और मानो ना मानो, B2B में बिजनेस रिलेशनशिप पे ही चलता है. अगर आप बिजनेस रिलेशनशिप पे चलाओगे B2B में, आपका टिकट साइज हमेशा बड़ा रहेगा. मेरा टिकट साइज कभी भी 5 और 6 डिजिट से नीचे नहीं गया, अभी 6 डिजिट ही चलते रहता है. क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप पे आता है. अगेन, रिजल्ट ऑल्सो मैटर, सिर्फ रिलेशनशिप से कुछ नहीं होगा. बट इनबाउंड मार्केटिंग के प्रोसेसेस आपके पास होने चाहिए, चाहे फिर वो इनबाउंड मार्केटिंग सोशल मीडिया से आ रहा हो, रेफरल से आ रहा हो, आपके दूसरे किसी एफर्ट से आ रहा हो. इनफैक्ट मैं बहुत बार करता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई काम आता है, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मुझे वेबसाइट बनानी है. मैं उठा के काम मेरे एक फ्रेंड को देता हूँ जो वेबसाइट बनाते हैं. आई डोंट इंडल्ज इन दैट. बट होता क्या है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, देयर इज अ वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज गिवर्स गेन. आप जितना ज्यादा देते हो ना, उसका 10 गुना आपको रिटर्न आता है. ये लिख लो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो मैंने अगर उसको एक वेबसाइट का काम दिया ना, उसके बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक चीज होती है कि यार मयूर ने हेल्प की है, तो अभी ऐसा कुछ आएगा ना तो मैं मयूर के लिए कर दूंगा. सो दिस इज अगेन इनबाउंड मार्केटिंग. आप इनबाउंड मार्केटिंग इसको भी बोल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कुछ किया, वहां से मैंने एक रिलेशनशिप बिल्ड की, मैंने एक एंकर डाला, अब वो कल चल के घूम के मेरे पास वापस आए. सो यस, इनबाउंड मार्केटिंग वर्क, एंड फॉर मी इनबाउंड मार्केटिंग हैज वर्क ट्रेमेंडसली. आज मुझे लिंक्डइन से भी इनबाउंड लीड आती है, मुझे इंस्टाग्राम से भी आती है. कुछ लोग मुझे, मेरे पुराने क्लाइंट्स भी मुझे रेफर करते हैं कि यार वो मयूर से करो. दैट अगेन आर इनबाउंड. मैं कहीं पे भी, आप मेरा पूरा लिंक्डइन देख लो, मैं कहीं पे भी नहीं बोलता कि डू प्रोवाइड मी वर्क. नो. So inbound marketing works fantastic, provided you are creating the right funnel for yourself. Yes, I think what is the other question we have? Rohan asks for the website for gig work or the freelance work. देखो रोहन, इसके अंदर है ना कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फाइवर देखा होगा, अपवर्क है. मैंने अपवर्क से काफी काम लिया है, मैंने फाइवर से काफी काम लिया है. देयर इज वन वेबसाइट कॉल्ड guru.com, वहां से काफी काम लिया है मैंने. अभी बहुत सारे दूसरे वेबसाइट, इनफैक्ट रिसेंटली मैंने देखा है कि फॉर डिजिटल मार्केटर्स कोई इजराइल बेस्ड कंपनी है जिन्होंने एक बहुत रोबस्ट प्लेटफॉर्म बनाया. आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट वो मैं निकाल के दे सकता हूँ कि यू कैन क्रिएट योर एंटायर पोर्टफोलियो, आपका क्लाइंट, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है. सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल. बट अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे कि मैंने क्या किया है, तो मैंने बहुत Sethi says please type for us. If you could just type here, I think one of them is Upwork, one of them is Fiverr, Guru.com is there. Harshita, can you type here? Sure, I'm doing that. Yeah, so Guru.com is there, Upwork is there, Fiverr.com is there. उसके अलावा freelancer.com है. बट freelancer.com से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, क्योंकि मुझे काफी फ्रॉड्स मिले वहां पे. फ्रीलांसर से मुझे काफी फ्रॉड मिले. यानी फ्रीलांसर से ऐसा भी हुआ था कि मैंने पूरा 15 दिन काम किया है एंड देन जस्ट क्लाइंट वैनिश्ड. यानी मैंने उसको काम कभी सबमिट नहीं किया, बट एनी विच वेज मेरे 15 दिन तो वेस्ट हो गए ना. फिर उस दिन के बाद मैंने कभी फ्रीलांसर पे काम नहीं किया. सो मेरे लिए जो 2 प्लेटफॉर्म हमेशा काम किए, स्पेशली आउटसोर्सिंग का काम लेने में, वो था अपवर्क एंड फाइबर, जो मुझे 2010 से 2015 तक इन्होंने मुझे बहुत काम दिया. लेकिन फिर 2005 सालों में व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज, मेरी खुद की वेबसाइट थी, मेरा लिंक्डइन प्रेजेंस है. इनफैक्ट मैंने जो एक चीज देखी है पिछले समय में कि ऑन लिंक्डइन यू गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल
विथ हाई टिकट वॉल्यूम। मुझे जो सबसे बड़ा हाई टिकट वॉल्यूम आया वो लिंक्डइन से ही आया है, और मुझे कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी लीड्स जो मिलती है वो भी लिंक्डइन से ही मिलती है, एंड एवरीथिंग इज इनबाउंड। फॉर मी लिंक्डइन का सक्सेस रेशियो इज मोर देन 90%। अगर 9 लोग मुझे 10 लोग कांटेक्ट करते हैं तो मैं 9 कन्वर्ट कर लेता हूँ। So, Rohan asked, what is the ticket volume? Honestly, Rohan, all tickets are in 5 and 6 digit. उससे नीचे कोई नहीं होता। और from LinkedIn I have always got retainer. यानी this is again a touch wood. मेरे साथ हमेशा यही हुआ है कि मैं फोकस ही रिटेनरशिप पे करता हूँ, बिकॉज और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मैं एक्चुअली क्लाइंट एजुकेशन पे बहुत फोकस करता हूँ। I actually try and find out the mentality of the client, क्योंकि आप जब क्लाइंट से बात करते हो तब आपको समझ में आता है कि is he going to be a short term client or is he going to be a long term client? Because I discuss lot of things. I discuss backgrounds, I discuss his vision। बहुत important है, क्योंकि अगर उसका विजन है क्विक मनी बना के निकल जाना ना, तो फिर वो लॉन्ग टर्म प्लेयर नहीं है। सो बेसिकली यू कैन से नर्चरिंग, बट नर्चरिंग में अलग चीज है। आई वुड से स्क्रीनिंग। सबसे पहले मैं स्क्रीनिंग करता हूँ, यानी अगर वो आ भी जाता है तो आई डोंट नर्चर हिम, आई स्क्रीन हिम कि क्या मेरे साथ ये काम कर सकता है और कितना लंबा काम करेगा, एंड देन आई गो अहेड एंड फाइंड आउट कि नहीं, हाँ इनके साथ काम। जैसे आज ही रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ अहमदाबाद बेस्ड क्लाइंट, दे आर एन आईटी कंपनी। They said कि we already have an SEO team, so what else can you do? अभी now what else can you do is I need to find out कि what else I can do and whether what मैं जो कर सकता हूँ उसकी उसको जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो एसोसिएशन में ही मत जाओ, अदरवाइज क्या होगा, वो एसोसिएशन 3 महीने में खत्म हो जाएगा। एंड आई डोंट फोकस ऑन एनी 3 month वाला क्लाइंट। माई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग 6 months to a year एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मैं उसको क्लाइंट को पहले ही एजुकेट कर दिया। ये बहुत सारे फ्रीलांसर्स को करना चाहिए, दैट एजुकेट योर क्लाइंट। और जब आप रश करते हो ना किसी प्रोजेक्ट को लेने में, तो आपकी गलती हो जाती है। बेसिकली बहुत बार आप भी क्लाइंट को समझ नहीं पाते, वो आपको समझ नहीं पाता, गो स्लो। हो सकता है 2 मीटिंग एक्स्ट्रा होगी, आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, बट जो वहां से कम्युनिकेशन निकलेगा ना, वो हमेशा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। So going back to the question is yes, Guru, Fiverr, freelancer, बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन से लीड आती है, जैसे मुझे आती है। ईमेल मार्केटिंग, मैंने बहुत ईमेल मार्केटिंग की है, और ईमेल मार्केटिंग से मुझे बहुत क्लाइंट आए हैं, लेकिन मैं ईमेल मार्केटिंग थोड़ा अलग तरीके से करता था। मैं ईमेल मार्केटिंग को बहुत ही पर्सनलाइज तरीके से करता था। मुझे पता है कि मैं इस क्लाइंट को क्या पिच कर सकता हूँ, तो मैं स्टडी करता था 2 दिन 3 दिन उसके बिजनेस को कैसे बना सकता हूँ, और फिर मैं बहुत पर्सनलाइज मेल लिखता था। तो बड़ी मुश्किल से मैं हफ्ते में 2 मेल लिख रहा हूँ, लेकिन मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ उनको 1 महीने के अंदर। मुझे पता है कि इसके लिए इसकी क्या प्रॉब्लम है या इसका कहाँ चैलेंज हो सकता है, एंड देन आई गो एंड पिन पॉइंट दोस्त थिंग। और जहां मुझे पता नहीं होता ना, आई शूट अ वेरी ब्लैंक मेल सेइंग कैन आई नो सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर फेसिंग इन योर बिजनेस, सो दैट आई कैन ट्राई एंड फाइंड आउट वेदर आई हैव एनी सॉल्यूशन। क्योंकि मेरे पास भी हमेशा आंसर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट एंड दे विल लाइक योर ऑनेस्टी कि यार इसे नहीं पता, ये मुझसे पूछ रहा है, शायद कुछ कर सकता है। सो आई हैव वर्कड दैट स्ट्रेटजी। इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रेटजी, अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप हंसोगे, आई हैव यूज्ड नौकरी टू फाइंड आउट प्रोजेक्ट्स। मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करता था जहां पे मुझे लगता था कि ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और इनके साथ काम करके मैं भी ग्रो करूंगा, और इनका बजट थोड़ा कम है, ये फुल टाइम हायर करने की जगह ये शायद ऐसे लोगों को हायर करना पसंद करेंगे जो इनके लिए जल्दी रिजल्ट ला सके। आई हैव टर्न्ड, अब तक पिछले 2 साल में मैंने 4 प्रोजेक्ट्स लिए जो नौकरी से सर्च किए मैंने। सो आई यूज लॉट ऑफ मेथड्स, और ये काम करता है। किसी के लिए काम करेगा, किसी, आई डोंट से सबके लिए काम कर सकता है। हाउ यू पिच इट, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट द सॉल्यूशन बहुत मैटर करता है, बट वर्थ अ ट्राई। Yes. Great. Okay. So Yathanshu asked, can you share your organization with Upgrad, association with Upgrad, sorry, by being a mentor? So, see क्या हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन अगर आप देखोगे ना तो लॉकडाउन के समय एक सर्ज आ गया था कि सबको डिजिटल मार्केटिंग पढ़नी है, और ऑल ऑफ अ सडन तो उनके पास भी शायद
मेंटर्स नहीं थे. तो नॉर्मली क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है कि दे हैव ऑनलाइन क्लासेस and then they assign you a mentor for question answer and doubt clearing and all that. So that was the 6 months I worked with Upgrad, where student used to talk to me, clearing the doubts. अलग अलग डाउट्स होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा ट्रैक चूज करे डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि उनके अलग अलग ट्रैक्स हुआ करते थे. फिर उस ट्रैक में जाने के बाद अगर उनको किसी टॉपिक पे समझना है या कोई टॉपिक में उन्हें पढ़ाया है लेकिन उनके साथ कुछ डाउट्स है कि ये कैसे होगा, या ईमेल मार्केटिंग कैसे होगी, या एसईओ का ये टॉपिक कैसे होगा. सो देयर वाज एन एसोसिएशन फॉर 6 months वेयर आई हेल्प स्टूडेंट सॉल्विंग देयर चैलेंजेस, एंड माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड विद देम. मुझे इतना समझ में आया कि दे आर अ वेल प्रोसेस्ड कंपनी, प्रोसेस ड्रिवन कंपनी है वो, क्योंकि उससे ज्यादा तो मुझे इंटरेक्ट, क्योंकि एक या दो स्पॉक थे जो मेरे से डिस्कस करते थे चीजें, बट आई रियलाइज्ड कि दे आर गुड कंपनी एंड दे हैव गुड प्रोसेस, सो आई हैड वेरी गुड एसोसिएशन विद देम. बट देन सिंस आई वाज एक्टिव इन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वी स्टॉप वर्किंग टुगेदर, क्योंकि मेरी फिर बहुत सारी प्रायोरिटीज आ गई. राइट. Okay, so I guess we can move forward. Yeah, sure. Like, should I go ahead with the PPT or with the questions only? I think जो बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो it's already a part of the PPT, because हम बात करते करते ही वैसा बता रहे हैं. So if you can continue with question, then I can just quickly run through some of my thing. Okay, great. So one question from Yatanshu again. Do you follow idea approach in funnel? Yeah, absolutely. बहुत सारे अलग हैं. IDEA is one of them. There is a bridge framework. There is problem solving approach. बहुत सारी चीजें हैं. तो yes, IDEA is a good platform and it gives good results. Personally मैंने use किया है and it has given me good results. Right. okay, so yeah, I guess we are left only with one question that we haven't covered yet. Apart from that, we have covered in our discussion. So we can discuss upon how to use customer service in marketing. ये it's a very interesting topic. मैंने यूज किया है एक्चुअली. नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर सर्विस को हम मार्केटिंग में कैसे यूज करें, राइट? तो बहुत बार क्या होता है कि आप कस्टमर को सर्व करते ही हो एंड यू डू इट बिकॉज दैट्स हाउ यू जनरेट मोर बिजनेस. बट जब कस्टमर सर्विस की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हाँ, जैसे मैंने सेल्स की बात की कि आई डोंट नो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपने समोसा सभी ने खाया, राइट? बट हम वहाँ समोसा खाना चाहते हैं जिसकी चटनी बहुत अच्छी होती है. आई थिंक मेनी ऑफ अस कैन रिलेट टू मी कि हम वहीं स्नैक्स खाते हैं जिसकी चटनी अच्छी है, जिसका सॉस अच्छा है. सो अगर समोसा आपकी सर्विस है, समोसा अगर आपका प्रोडक्ट है, तो चटनी इज योर सर्विस. सो हाउ डू यू एक्चुअली कम्युनिकेट टू द क्लाइंट? How do you go ahead and solve their problems? How you actually communicate to the things? पहले होने से पहले ही आपको बता रहे हो, आप उनके सामने एक प्लान लेआउट कर देते हो कि सी फर्स्ट मंथ ये करेंगे, सेकंड मंथ ये करेंगे, अब ये हो गया है, वो हो गया है. जब ये चीजें आप अपनी सर्विस का पार्ट बना लेते हो ना, द कस्टमर बिकम्स योर एडवोकेट सूनर और लेटर. और ये बहुत आसान है आज की तारीख में, जहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल है. आई यूज टूल लाइक असाना, और मैं अपने क्लाइंट को एक्सेस दे देता हूँ कि भाई तू भी देख कि तेरे प्रोजेक्ट पे क्या चल रहा है. तो दैट बिकम्स माय गो टू अप्रोच इन द कस्टमर सर्विस कि हाँ, मयूर ने अगर ये तारीख की डेडलाइन रखी है तो ये तारीख को काम हो गया. एंड आई एजुकेट दोस कस्टमर. इनफैक्ट एक और चीज जो मैं प्रैक्टिस करते आया हूँ हमेशा से कि वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ वीकली कॉल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कॉल्स लेते हो तो आप बताते हो कि इस वीक हमने क्या अचीव किया, हमने क्या अचीव नहीं किया. वो भी फोकस करना जरूरी है, बिकॉज क्लाइंट लव्स कि हाँ यार ये सच बात हो रही है. अनदर थिंग इज, मैं कस्टमर सर्विस में एक और पॉइंट जोड़ता हूँ, वो है रिपोर्टिंग.
रिपोर्टिंग है ना ऐसी होनी चाहिए जो क्लाइंट को समझ में आए. जैसे बहुत बार अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो आप, इट आपको बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं. अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू यूज टूल्स लाइक स्प्राउट सोशल या हाउटसूट या समथिंग, तो उनके कुछ इनबिल्ट रिपोर्ट आते हैं फॉर एग्जांपल. बट है ना वो रिपोर्ट बहुत फैंसी है. वो रिपोर्ट बहुत बार कस्टमर को समझ में नहीं, एंड इट्स एट टाइम्स इट गिव्स रॉन्ग मैसेजेस कि आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ यार इस महीने ग्रोथ हुई, लेकिन अगर आप पिछले महीने से उसको कंपेयर करोगे ना तो वो सही ग्रोथ नहीं होती है. सो यू नीड टू फॉर्म्यूलेट रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सही रिपोर्ट क्लाइंट को शो कर रहे हो ना, भले उस रिपोर्ट में दिख रहा है कि पिछले महीने से इस महीने डाउनफॉल है, बट दैट रिपोर्ट विल आल्सो हेल्प क्लाइंट टू अंडरस्टैंड कि हाँ डाउनफॉल है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कि कंटेंट सही नहीं बने थे, या बहुत बार ऐसा होता है कि आपने क्लाइंट को सब कुछ भेज दिया, क्लाइंट के एंड से अप्रूवल ही नहीं आया, जो पोस्ट जाना चाहिए था वो गया ही नहीं. तो क्लाइंट को भी पता होता है कि हाँ यार मेरे एंड से इशू है. तो ये सारा जो रिपोर्टिंग भी है, ये कस्टमर सर्विस का पार्ट है. बहुत सारे लोग रिपोर्ट पे फोकस ही नहीं करते. इनफैक्ट ये चीज मैंने ना I don't know, I don't want to typecast people or any profession, but graphics designing के मैंने काफी ग्राफिक डिजाइनर के साथ काम किया है. तो मुझे लगता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ना बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, क्योंकि लोग उसको एंड रिजल्ट पे फोकस करा दे कि हाँ मैंने एक रिजल्ट बना दी या मैंने एक लोगो बना दिया. बट उस लोगो की प्रोसेस को जब आप एज अ कस्टमर सर्विस उसको बताते हो कि हाँ ये चीज होगी, उसके बाद आपके लोगों में क्लाइंट विल अप्रिशिएट दैट. इट इज अ पार्ट ऑफ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको कस्टमर सर्विस भी कहता हूँ, लेकिन ये आपके स्ट्रैटेजी का भी पार्ट होना चाहिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू गेन मोर ट्रैक्शन फ्रॉम द कस्टमर. मैं अपने सर्विस के अंदर एक और चीज जोड़ देता हूँ, वो ये जोड़ देता हूँ कि every customer that spends 6 months with me, मैं उनको एक फीडबैक फॉर्म देता हूँ, और वो फीडबैक फॉर्म बहुत हेल्प करता है मुझे भी बताने में कि मैं कितना पानी में हूँ, और क्लाइंट को भी पता चलता है कि ये कितना काम आ रहा है मेरे. वन मोर थिंग, एक प्रैक्टिस मैं काफी टाइम से करता आया हूँ, वो है कि कस्टमर टेस्टिमोनियल ले लेना. और अगर वो कस्टमर, एक प्रोसेस होती है, पहले आप फीडबैक लेते हो, फीडबैक अगर पॉजिटिव आता है तो आप कस्टमर टेस्टिमोनियल लेते हो, और कस्टमर टेस्टिमोनियल ले रहे हो तो आप उससे है ना 3 रेफरल ले लो. वो रेफरल लेने का मीनिंग ये है कि आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ अ न्यू कस्टमर हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि वो आपके पास रेडी रेफरेंस है. अगर आप फीडबैक लेते हो और अगर फीडबैक निगेटिव या एवरेज आता है तो कस्टमर टेस्टिमोनियल मत लो. कस्टमर टेस्टिमोनियल आप तभी लो जब फीडबैक पॉजिटिव आता है, तभी आपको रेफरेंस भी मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी हमेशा कस्टमर रिव्यू हमेशा हाई मिलते हैं, नहीं. सो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और ये कस्टमर सर्विस का ही हिस्सा है. और जिस दिन आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना अपनी पूरी सर्विस के अंदर, यू विल फाइंड आउट दैट नया कस्टमर लाना और उसको सर्विस करना, उसको एक्वायर करना ना, इट बिकम्स पीस ऑफ केक वॉक. फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं नजर आए. फिर लोग ये बोल ही नहीं सकते कि मुझे लीड्स नहीं मिलती. लीड्स मिलती है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके पूरे सिस्टम में ये चीजें हो. Someone is writing Yathanshu. It says Maharaja Samosa of Naranpura. Yathanshu, are you from Ahmedabad somewhere? I don't know. He's not typing. Anyways, let's move. Right. Right. So that was all the questions I had. So we don't have any questions right now. Anyone from the audience? Yeah, any from the audience has any question, they can put it out. I guess someone wrote some question in the starting, but it's not visible now. Let's check out. What is the question? Do we have? I don't see any more question unanswered. Okay. So, what do you want to do now? So, what we can do is basically we can go ahead and just quickly run through the presentation that I have. It will actually, I think, majority of the things are already covered, but मैं
एक ट्रिविया पूछना चाहूंगा सो जस्ट मूव ऑन टू दिस, जस्ट मूव द स्लाइड. Just move on. I think definition. ये तो definition है. So just move on next. Again, next. This is something which I would take an entire 2-day workshop. अभी जैसे ये food for thought है. I have a question for every. Just उसी पीछे भी रहो. हाँ यही रहो. Now I want a quick participation from you guys. अब मुझे ये बताइए कि इन तीनों में क्या common है. Can I have? Yeah. Someone wrote dedication. Dedication, captaincy. Okay. Again, कैप्टन तो तीनों थे. अगेन डेडिकेशन यहाँ बहुत जनरल है. कम ऑन गाइस, डेडिकेट कौन सा क्रिकेटर डेडिकेटेड, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन डेडिकेट नहीं होता है. सभी लोग होते हैं. मैं भी डेडिकेटेड, आप भी डेडिकेटेड हो. कैप्टनसी ठीक है, परमजीत से या वेल पिक्ड. एनी वन थिंग. अगेन यू आर वेरी क्लोज. कैप्टनसी तो ठीक है. आइडेंटिफाई. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जो आप लीडरशिप क्वालिटीज. यस, दैट्स वन थिंग. लीडरशिप, तीनों लीडर थे, राइट. ये नाउ यू आर कमिंग ऑन. Aggressive captains. Yes. Major championship win. Yes. So now I'll give you quick thing. आपने जो भी बोला सब सही है, बट मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ. See, अगर मैं कपिल देव को देखूं, he was a great bowler. He also won matches for India through his bowling. He also won matches for India using the batting. वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे. One thing is very good is he was also good fielder, right? तभी हम कपिल देव को ऑलराउंडर कहते थे. Everybody agrees to this, right? मैं गांगुली को ऑलराउंडर तो नहीं कहूंगा because he was not that great fielder, but he was a good batsman. He was a very aggressive. In fact, अगर आप देखोगे कि गांगुली की कैप्टनशिप के बाद there is an era that has changed. Again, Ganguly has also bowled uncanny knack of bowler. So again, I would say some level वो एक ऑलराउंडर की तरह ही बहुत बार बिहेव किया. And we all know धोनी, कैप्टन, बैटिंग, वो कभी बॉलिंग एक दो ओवर कर भी लूँ, कभी एक आधी विकेट ले लेंगे, बट he has a cricketing brain. और क्रिकेटिंग ब्रेन में फिर सब कुछ आता है, कौन से बॉलर को लगाना है. So in all sense, you can say that they were all rounders. And when I say all-rounders, यानी definitely धोनी को अच्छी बॉलिंग नहीं आती थी, लेकिन उसको ये पता था कि मैं कौन से बॉलर को लेके आऊंगा तो मुझे विकेट तुरंत मिलेगी, ये सिचुएशन क्या है, राइट. सो दैट मेक्स हिम अ गुड ऑलराउंडर. कि सिर्फ खुद को आने जरूरी नहीं है, उसको कोलैबोरेट करते आता था. दैट मीन्स एज अ फ्रीलांसर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ चीजों में कोलैबोरेशन भी करना पड़ेगा. जैसे किसी ने पूछा था कि लीगल आता है क्या, नहीं मुझे नहीं आता. सो व्हेन यू से दे वर आल्सो फ्री, अगर वो चाहे तो उनको आप यू नीड टू आइडियलाइज कि हाँ ये सिचुएशन में कैसे काम होगा. दिस इज वेयर आई थिंक कि अल्टीमेटली ये सब कुछ करते थे. जब आप कैप्टन बन जाते थे वैसे भी टीम के लिए सब कुछ कर. इनफैक्ट वो ड्रेसिंग रूम में लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि यार तेरे को अच्छा खेलना है. तो आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, आप अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हो. सो दैट्स वेयर इट इज कि दे वर ऑल. अगर आप एज अ फ्रीलांसर हो तो इनसे सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज सिचुएशन से बाहर निकलना is very important. So that's what the trivia is. They were all rounded. You can consider them as a freelancers as well. Right. So let's move ahead. So again, I think ये point मैंने पहले ही डिस्कस किया था. इतनी सारी चीजें आपको करनी है, and that's why मैं freelancer हमेशा यूज नहीं करता हूँ. I use Gigpreneur. Let's move ahead fast. मैं अपने actually मैं एक rephrase करता हूँ यहाँ पे. मेरी 5 चीजें. This is how I work with a lot of people. I've trained few students as well. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सेमिनार्स हो. So I've done a lot of things. Can you move ahead? Just move ahead. Yeah, so these are, and again ये एक टच पॉइंट है. देखो जब आप फ्रीलांसर्स होते हो ना, आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है.
सो फिटनेस इज समथिंग दैट यू नीड टू, क्योंकि आप एक ही चेयर पे बैठे हो, एक ही जगह बैठे हो, फिटनेस इज समथिंग दैट. सो पिछले 3 साल से आई हैव स्टार्टेड aggressively working on my fitness. So I ran more than 10K kilometers. 21 की मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन to some reason लॉकडाउन आ गया तो अब वो नहीं हो पाया. But again I do exercise. Marathon is something my passion has become passion. तो ये so health is very important factor जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. And it is very important. चाहे वो freelancer हो या कोई भी हो, but in freelancer की लाइफ में इसलिए हो जाता है क्योंकि आप long hours में हो. These are some of the people. These are again BNI, where I joined. I was a part of elite group. I trained a few people. I learned from these guys. Fantastic group. I was part of this association for 2 years. बहुत सारी चीजें सीखी. Let's move ahead. Just try and quickly move. I think these are some of the trainings that I've done over a period of time. These are some of the students that I learned from me. चाहे फिर LinkedIn सीखी हो, चाहे फिर वो मेरे साथ काम किया हो, अब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. All these guys. Yeah, move ahead. Yeah, again, it's job versus dream. मैं actually I want to concentrate on those 5 points. Can you just quickly move ahead? आगे है ना कुछ 5 पॉइंट है. ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है. Again, move ahead. These are the real thing that have. ये again tip of the iceberg है. Mindset is very important. But DNA मैंने बोला critical thinking. बट ये सब कुछ माइंडसेट से आता है. जिस दिन आपका माइंडसेट नहीं बनेगा नहीं होगा. आगे चलो. वी हैव 5 थिंग्स. जस्ट मूव. फटाफट आगे लीजिए. अगेन कम. गो अहेड. अगेन गो अहेड. गो अहेड. अगेन गो अहेड. प्रूवन मेथड्स. अगेन गो अहेड. These are the profitable niche in 2021. First thing first, go ahead. Again, go ahead. Yes, यहाँ रुक जाइएगा. Yes. See, मैं आपको जो अपने 5 experience बताता हूँ. So this is how I shaped my career. मैं अपने 5 experience या 5 examples के लिए पहला case study है. This was me back in 2010. कुछ नहीं था, no portfolio, nothing. But इतना पता था कि हाँ, I can do something. I know English, I can write, I can speak. मैं support दे सकता हूँ. I can become a technical support guy. घर पे बैठे I can become virtual assistant for someone. तो ऐसा कुछ तो मैं कर सकता हूँ. So I went to one of my friend जिसको मैं जानता था. वो मेरे से काफी elder थे और he was having a IT consultancy company थी उनकी. So I went to him and I told him कि यार मुझे कोई क्लाइंट चाहिए क्योंकि मैं घर पे बैठ के कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा और मेरे पास ये स्किल्स है. So he said कि I don't know कि whether I have any opportunity for you, but let me talk to some of my clients. तो अभी how trust flows, क्योंकि अगर B2B में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से ट्रस्ट फ्लो कैसे हुआ ये समझिए. But friend trusted me and the client trusted my friend as an agency. So he introduced me कि हाँ यार ये एक बंदा है जो शायद कुछ कर सकता है आपके लिए. And that client was looking forward to a content writer. So he introduced me to that. And then I was very very honest. ऐसे मैंने जिंदगी में कभी content writing नहीं की है. But what I can do is to you is you give me 2 assignments. I will do these 2 assignments to you for free. मैं पैसा नहीं लूंगा उसका, लेकिन अगर आपको पसंद आएगा तो हम काम करेंगे और फिर उसका मैं पैसा लूंगा. So he said कि नहीं, that's worth a try. So he gave me work where I excelled, and then from then onwards I worked with that client for 5 years. 5 years. What I did, I piggybacked on someone's trust. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई बुरी बात की, मैं piggyback किया. हाँ, at the same time मैंने किसी के भी भरोसे को टूटने नहीं दिया. Yes. And that's how this association works. So I piggyback. So this is again, कुछ लोग इसको growth hack कहते हैं. You will find out that a lot of people use growth hack, but I use it as a simple relationship building. मैंने सिंपल अपना रिलेशन यूज किया और फर्स्ट क्लाइंट अचीव किया. दिस इज हाउ एग्जैक्टली द वे आई गॉट माय फर्स्ट फ्रीलांसिंग क्लाइंट. सिंपल. कोई पोर्टफोलियो नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था, एंड फ्रॉम यहां से मैंने पोर्टफोलियो बनी. दिस इज माय फर्स्ट केस स्टडी.
Move ahead. Let's roll next case study. Yes, again मैंने आपको बताया था, उसके बाद I started understanding digital marketing. Then I the another tool that I used is email marketing. बहुत सिंपल था. यूएस के क्लाइंट के ईमेल निकालता था मैं उनकी वेबसाइट से, उनको ही मेल भेजता था कि मुझे आपकी वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एसईओ करता था तो मुझे दिखता था कि रिपोर्ट में मैं रिपोर्ट बना के भेजता था, उसने नहीं मांगी है तो भी मैं बना के भेजता था कि आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम्स है, इसको मैं 3 महीने में ठीक कर सकता हूँ, और अगर आपको लगता है तो हम बात कर सकते हैं. मैं प्राइस की बात ही नहीं करता था. एट द एंड जब डील वो बोलता है कि अब तू पैसे कितने लेगा ये बता, देन आई यूज्ड टू डिस्क्लोज कि हाँ मैं इतना पैसे की बात ही नहीं, नो टॉक ऑफ मनी, बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि यार ये तो पैसे के लिए कर रहा है. एनी व्हिच वेज एवरीबॉडी इज डूइंग फॉर मनी, बट देन लेट्स फोकस ऑन सॉल्यूशन कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे अचीव कर. सो आई यूज्ड टू सेंड लॉट ऑफ ईमेल्स महीने में, और उस समय ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं भेजता था. आई यूज्ड टू सेंड अराउंड अबाउट डेली 3-4 मेल भेजता था, और आई यूज्ड टू गेट गुड रिस्पॉन्सेस. बहुत लोगों से बात होती थी. पेपाल वाज द वन थिंग. आई यूज्ड टू कलेक्ट लॉट ऑफ मनी उस समय, क्योंकि बैंक अकाउंट में ऐसे नहीं आता तो पेपाल के थ्रू लेता. बट आई यूज्ड ईमेल मार्केटिंग अ लॉट. और उस समय द वर्स्ट पार्ट इज कि मुझे ये आइडा फ्रेमवर्क और ये सब नहीं पता था. मैं सिर्फ सॉल्यूशन बेचता था. मुझे पता भी नहीं था कि शायद ऐसे आइडा फ्रेमवर्क यूज करेंगे या ऐसे ब्रिज फ्रेमवर्क यूज करेंगे. ये तो बहुत बाद में समझ में आया कि अच्छा ऐसे भी होता है. मैं तो सिर्फ अपना लैंग्वेज यूज करके बेचता था कि हाँ भाई मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम का. एंड दैट्स हाउ वी गेट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. In fact, back in 2013 से 15 के बीच में I got more than 9 SEO clients through this method only, and all 6 months, 1 year long clients. Go to next. Yes, this is a quick. तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब मैं बहुत काम कर सकता हूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने कोई सोशल मीडिया बहुत तामझाम यूज नहीं किया. मैंने ऐसी जगह जाना शुरू किया जहाँ के सारे बिजनेसमैन हैंग आउट करते. सो लोकल मैनेजमेंट एसोसिएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन है. जैसे नागपुर में मैं था तो नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स था. विदर्भ मैनेजमेंट एसोसिएशन था. विदर्भ, जैसे आपने लास्ट जो एक ट्रेनिंग का फोटो देखा जो बहुत सारी लेडीज बैठी थी, दैट वाज अ वुमेन विंग ऑफ विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन. तो मैं यहाँ जाता था, उनके साथ नेटवर्किंग करता था. नेटवर्किंग फोरम्स पे था. BNI अगेन नेटवर्किंग फोरम था. इनफैक्ट मैंने लोगों को there is one marketing technique which you called as congruent marketing. Congruent marketing का मतलब होता है कि आप कोई चीज फ्री में पढ़ा रहे हो. इनफैक्ट मैंने more than 30 सेशंस लोगों को डिजिटल मार्केटिंग फ्री में पढ़ाया है, और वहां सिर्फ एंटरप्रेन्योर आते थे और उनसे मेरी बातचीत होती थी. और हर हफ्ते मैं कम से कम 1 या 2 क्लाइंट छोटे मोटे गिग के लिए कि भाई यहाँ चलो वेबसाइट बनानी है तो मैं किसी से कनेक्ट करता हूँ, या कंटेंट राइटिंग करनी है, या छोटा उन्होंने SEO करवाना है. सो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक दैट. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे मिले जो मैं इस मेथड से लाता था, बिकॉज नाउ आई हैव अ क्लाइंट डायरेक्टली टॉकिंग टू मी, 1-to-1 कनेक्ट्स में. So these are all things which is happening through me on very simple basics. यानी मैं इसमें कोई rocket science नहीं है, कोई भी कर सकता है इसको. But I used to do that a lot. Engage with people, build relationship, find out their problems and solution. Then I started using lot of social media. अब जब मैं ये चीजें करता था तो इसी चीजों को amplify करता था कि see I did this, I did that, I helped my client. और कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही है क्योंकि मैं हेल्प कर रहा हूँ. सो अगर आप देखोगे केस स्टडी 4 तक पहुंचते पहुंचते तो ऐसे ही जर्नी होती है. आप बहुत लोग बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया पे आ गए, मुझे लिंक्डइन से लीड नहीं आती है, मुझे हो सकता नहीं आएगी बिकॉज आपके पास पोर्टफोलियो भी नहीं है आज. तो आप कैसे करोगे? सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्यास लगती है तो आप क्या करोगे? आप डिस्टिलरी की फैक्ट्री में तो नहीं जाओगे ना. आप जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन होगा कि चलो यहाँ स्टोर है, मैं यहाँ से पानी लेके पी सकता हूँ या घर के मटके से ही पी सकता हूँ. तो फर्स्ट फाइंड आउट फ्रॉम योर नियर विसिनिटी. आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब करके अजनबी लोगों से रिलेशनशिप बनाने की सोच रहे हो. फर्स्ट फाइंड आउट कि आपके आजू बाजू कौन लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है. फाइंड आउट. लोग ये छोड़ देते हैं एंड दैट्स द बेसिक थिंग दे शुड डू. और ये मैं देखता हूँ कि बहुत कुछ हो रहा है. द नेक्स्ट थिंग विच इज बोनस, ये मैंने बहुत किया है पिछले 2 सालों में. आई टर्न जॉब पोस्टिंग इनटू फ्रीलांसिंग. लोग नौकरी पे जाते हैं, naukri.com पे ऐसे बहुत सारे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं कि उनको फुल टाइम चाहिए. अब वो अगर फुल टाइम उस बंदे को लेके आएंगे उनको नहीं मिलता है कि
ठीक है, they want to find out a digital marketing manager and the salary would be like 50,000 600, वो afford नहीं कर सकते. So I used to talk to them and tell them कि I can do this work for you and I can go ahead and do this at a relatively much competitive price. I don't say cheap, but much competitive price. And I have generated a lot of business. I have, as I said, 4 clients I have generated through this. Again, it helped me. So these are the 5 things that I have done over a period of time, which has helped me tremendously. Again, content ideas, आप क्या कर सकते हो सोशल मीडिया पे, ये सारी चीजें हैं. Let's move. I think इसके बाद का slide is very good. ये tools है. In any freelancer's life, tool is very important क्योंकि वो काम आपका आसान कर देते हैं. अभी if you ask me, I don't send proposals to my client. लंबे चौड़े 4-4, 5-5 पेज के proposals मैं नहीं भेजता हूँ. उसके पीछे का रीजन है कि जब मैंने अपने क्लाइंट को सर्वे किया था, जब मैंने क्लाइंट से बात की, तो ये समझ में आया कि they don't read my or they don't read the entire proposals. वो जाते लास्ट पे देखते पैसे कितने लिखे, what is the fees that person is going to charge me. अगर वो अफोर्डेबल होगा तो पूरा पढ़ते थे, अगर अफोर्डेबल नहीं होता है तो छोड़ देते थे. और इसमें जो आपने जितने भी जार्गन्स लिखे हैं अपने प्रपोजल में, सब वेस्ट. So that's where I started using a tool. I'm sure mind map आप सबको पता होगा, बट मैं माइंड मैप यूज करता हूँ. सो एक ही पेज में मैं पूरा का पूरा मार्केटिंग कैंपेन बना के दे देता हूँ कि मैं ये करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ये पैसा होगा, इतने टीम मेंबर हो गए, एंड इट बिकम्स अ 1 पेज मार्केटिंग प्लान. इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर मी. मैंने पिछले 2 साल से मार्केटिंग माइंड मैप यूज करना शुरू किया एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने कोई भी प्रोजेक्ट हारा नहीं है वहां पे. So these are some of the tools, and then again these are some of the books that I have been reading a lot. ये books ने मुझे बहुत help किया है, and it creates a kind of mindset for you. So I think that's my time, guys. Yeah, that was the last slide. Yes. Do we have any questions? I don't know. Yathanshu asked some questions, I guess. Tanshu, what says this? So you admire Saurabh Bajaj? Also do he's a great FMCG marketer. What qualities him attracts everyone? Bonus to share your LinkedIn lead generation mastery with us attendees. See, I will definitely be able to share. I'm right now working on some of the content to enhance that, but I think I will share with Harshita by next Tuesday somewhere. You can share that with the audience because मैं उसमें नए algorithm के हिसाब से थोड़े बहुत changes कर रहा हूँ. And when you say Saurabh Bajaj, I admire a lot of people and बहुत सारी चीजें हैं. You read a lot of content for people. You try and understand कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी और हमारी सोच होती है. I'm also associated with a lot of other marketers. We do a lot of joint sessions, कुछ webinars होते रहते हैं, उन marketers के साथ भी होते हैं. So we learn from each other, absolutely. And I think I'm still learning for you guys. मुझे भी समझ में आता है कि आप किस तरीके के सवाल पूछ रहे हो, आपकी thought process क्या है. So I learn from lot of people, lot of things, to be honest. So everybody is जहाँ भी, again I don't know 3 Idiots आपने सबने देखी होगी, but there's a one line कि यार जहाँ ज्ञान मिले वहाँ बैठ जाओ. Simple. Nothing stops you. Okay. Right. We will wait for a minute more. If anyone has any question, they can put it out. Can we have access of this session or jointly? I'll upload the recording on YouTube and you can find that. Thank you so much, Mayur, sir. That was an amazing session. That was super interactive and we learned a lot of things from that. Great. It was really good to see an engaging audience here, and it's one of my first experience, to be honest, on voice only. Most of the time, it's more of a video sessions and all that. But again, Twitter Spaces chalte rehta hai. But again, this kind of session was only of mine, which is fantastic experience, and audience are amazing. So Shetty asked, last slide, please. Once. You can just show them last slide. They can take a screenshot or whatever they want. I'll share the PPT and the recording with all of you. They already know that. I don't know why they ask. I'll share everything every time. So don't worry of that. And great.
Yeah, Wonderful, guys. Wonderful. I'm really thankful to all the audience and to you for spending their time. I hope this session was helpful to everyone there. And Mayur sir, I hope you enjoyed the session as well. Thank you so much. Absolutely, absolutely. And those who really understand what it is, you can go ahead and if you want to go ahead and create a LinkedIn post, because see, we need to understand that this freelancing is a lifestyle. To be honest, this is what I call as lifestyle. So बहुत सारे लोग इसीलिए इस lifestyle को आगे नहीं बढ़ा पाते because they find out certain bottlenecks, and that is where I am helping people to streamline a lot of things. So if you find out this, you find this session as useful, go ahead and talk about it. Write down your reviews, your views on your LinkedIn, and that will help a lot of people. Lot of people. ऐसा नहीं है कि आपने मेरी बढ़ाई करनी है. It's more of it will also give people those who are planning to have this kind of thought process. वो ये समझेंगे कि आप वो अकेले नहीं है. बहुत सारे लोग कर रहे हैं और they will get a lot of motivation out of that. So yeah, I am looking forward to each one of LinkedIn posts. Let's see how many of they gives us the feedback through a LinkedIn post. And yeah, that was all for today, I Great, guess. great. Thank you so much, everyone, for their time. Thank you so much, sir. And yeah, have a good day. Thank you, everyone. Thank you, You everyone. too. Bye bye. Bye bye.